Hi guys, I am Fakhar Abbas. I hope you will be fine and doing well. Today we are going to discuss very important short story and the word changed by Muneeza Shamsie. In this class we will discuss this short story in detailed discussion so that if they ask any question of 25 marks in exams, you can easily attempt it. Another thing I want to add is that we also provide notes in the form of slides during the class so that you can easily understand it. So let's we start our class without wastage of time. So first of all is there is a confusion and there is a conflict between the writers of this short story. Some people said that the writer of this short story is Muneeza Shamsie and other people said that the writer of this short story is Sabeen Javeri Jilani. Muneeza Shamsie edited an anthology of 25 short stories in which she included a story and the word changed written by Sabeen Javeri Jilani, and she also named her anthology and then the word changed. So actually the writer of the short story is Sabeen Javeri Jilani and the editor of short story is Muneeza Shamsie. So after this is the main characters of the short story. There are three main characters. One is Munna, second is Lakshmi, and third one is Bobby. Munna is a Muslim and he is a young child. And second character is Lakshmi. Lakshmi is a Hindu girl. She is childhood friend of Munna. She is a Hindu girl. And third character is Bobby. Bobby is uncle of Munna who brings a new car in the street of Karachi. बॉबी जो है मुन्ना का अंकल है और वो कराची की गली में एक नई कार ले आता है. So after this is the summary of the short story, and before starting summary I will like to tell you that the background of the short story is pre-partition, or we can also say that the time period of the short story is pre-partition, and the setting place of the short story is old Karachi. So let's we start the detailed summary of the short story. A new Chevy motor car enters in the narrow street of old Karachi. पुराने कराची की एक तंग गली में एक नई चेवी मोटर कार इंटर होती है. All the neighbors come together to see this new branded motor car. इस नई ब्रांडेड मोटर कार को देखने के लिए तमाम हमसाए इकट्ठे होते हैं. They are shouting happily and become surprised to see. वो तमाम इसे देखकर खुशी से चिल्लाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं. All children running behind the new car to see and touch it. तमाम बच्चे जो उस स्ट्रीट के हैं वो उस कार के पीछे भाग रहे हैं उसे देखने के लिए और उसे टच करने के लिए. They are trying to jump it to see themselves in mirrors. वो अपने आप को गाड़ी के शीशों में देखने के लिए जंप कर रहे हैं और छलांगे लगा लगा कर खुद को शीशों में देखने की कोशिश कर रहे हैं. Some people are passing the comments in critical way because the car belongs to the West, it means America. और कुछ लोग जो हैं वो क्रिटिकल वे में कमेंट पास कर रहे हैं, इसके ऊपर कमेंट लगा रहे हैं क्योंकि ये कार जो है बिलोंग करती है वेस्टर्न कल्चर से, बिलोंग करती है अमेरिका से. द ड्राइवर बॉबी अंकल स्टॉप्ड द कार ऑन अ प्लेस वेयर ही थॉट इट इज़ बेस्ट टू पार्क देयर. उस गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका नेम है बॉबी अंकल. वो गाड़ी को एक ऐसी जगह पर रोकता है जहां वो समझता है कि ये बेस्ट प्लेस है पार्किंग के लिए. A little child named Munna who came out of the house and starts shouting happily to see his uncle Bobby with a real Chevy motor car in front of his house. एक छोटा बच्चा जिसका नेम मुन्ना है वो अपने घर से बाहर आता है और चिल्लाना शुरू कर देता है खुशी से जब वो अपने अंकल को देखता है, बॉबी अंकल को देखता है एक हकीकी चेवी मोटर कार के साथ, और वो मोटर कार उनके घर के सामने खड़ी होती है. Beside this, their neighborhood named Munira, who spent her most of the time in Munna's house, came outside on Munna's shouting to see what was happening outside. और इसके बाद उनकी जो पड़ोसन होती है जिसका नेम है मुनीरा, वो अपने घर से बाहर निकलती है ये देखने के लिए कि मुन्ना जो है वो क्यों चिल्ला रहा है, बाहर क्या हो गया है. और ये मुनीरा जो है ये अपना ज़्यादातर वक्त मुन्ना के घर में गुजारती है.
After this, the mother of Munna and Lakshmi Hindu neighborhood came out of their house with thali of puja to save the car from evil eyes of neighbors and others। और इसके बाद मुन्ना की अम्मी और उसके साथ ही एक नेबरहुड में एक हिंदू लड़की रहती है जिसका नेम लक्ष्मी है। वो दोनों अपने घर से बाहर आती हैं और उनके हाथ में एक थाली ऑफ पूजा है। वो उसे अपने साथ लेकर आ रही हैं कि वो कार को नेबर्स और दूसरे लोगों की बुरी नज़र से बचा सकें। स्लोली ऑल द नेबर्स केम टुगेदर टू कांग्रेचुलेट दैम। ऐसा ऐसा तमाम पड़ोसी जितने भी हमसाए थे वो इकट्ठे हो गए उनको कांग्रेचुलेट देने के लिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए। They all want to drive the car on the beach or highway, but unfortunately the car got minor accident and lost engine and never starts again। वो तमाम लोग ये चाहते थे कि वो कार को ड्राइव करें और वो कार को बीच के ऊपर या फिर हाईवे के ऊपर चलाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कार है उसका एक माइनर एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसका इंजन जो है वो सीज हो जाता है, यानी कि आउट ऑफ वर्क हो जाता है और फिर वो दोबारा कभी स्टार्ट नहीं हो सकती या वो नहीं चल सकती। मुन्ना's मदर एंड अदर वुमेन ऑफ देयर नेबरहुड केम रेगुलरली इन डे टाइम टू क्लीन द कार and listen the songs of Indian movies and gossips about film stars on All India Radio। मुन्ना की अम्मी और उसके साथ दूसरी हमसाई खवातीन रोज़ाना रेगुलरली कार को साफ़ करने के लिए आती और वो इंडियन मूवीज़ के सॉन्ग्स और उसके बाद फिल्म स्टार्स जो होते हैं उनकी गुफ्तगू को सुनती ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर। ये ऑल इंडिया रेडियो जो है ये एक चैनल होता था जो रेडियो के ऊपर अपनी नशरियात जो है उनको नशर करता था। और बॉबी अंकल जो होते हैं वो दो चीज़ें लेके आते हैं, एक होती है न्यू मोटर कार और उसके साथ एक रेडियो होता है जहाँ पे डिफरेंट चैनल्स चलते हैं। तो ये जो हमसाई औरतें हैं जब ये कार को रेगुलरली साफ़ करने के लिए आती हैं या इसकी सफाई के लिए आती हैं मुन्ना की अम्मी के साथ, तो ये इंडियन मूवीज़ के सॉन्ग्स सुनती हैं और उसके साथ साथ फिल्म स्टार्स की गुफ्तगू भी सुनती हैं ऑल इंडिया रेडियो पर। ऑल्दो द सोसाइटी इज़ इस्लामिक कल्चरल एंड रेस्पेक्टफुल, अगरचे जो सोसाइटी है वो इस्लामिक कल्चरल है और उसके बाद रेस्पेक्टफुल है। सो दे कवर द कार्स विंडोज़ एज नो वन कैन सी और हेयर दैम फ्राम आउटसाइड। तो इसलिए वो कार की जो विंडोज़ होते हैं, जो कार की खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, गेट होते हैं, वो उनको ढांप लेते हैं ताकि बाहर से कोई भी उनको ना सुन सके। वेयर इज ऑल मेल कम एट नाइट टू लिसन BBC न्यूज़। और जितने भी मेल थे, जितने भी मेल नेबर्स थे वो रात को आते और BBC न्यूज़ सुनते। अंकल बॉबी डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ जेंटलमैन। अंकल बॉबी जो होते हैं वो खुद को एज अ जेंटलमैन डिस्गाइज करते हैं, अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं बाकी नेबर्स के सामने। ही सेट्स द वर्ल्ड वाइड न्यूज़ चैनल्स सच एज BBC और ऑल इंडिया रेडियो एट्सेट्रा एंड डिस्कस विद नेबर्स। और बॉबी अंकल जो होते हैं वो वर्ल्ड वाइड के जितने भी रेडियो चैनल्स होते हैं उनको सेट करते हैं, उनको लगाते हैं, जैसे कि BBC न्यूज़ हो गया, उसके साथ ऑल इंडिया रेडियो हो गया। और फिर उनकी जो डिस्कशन होती थी, उनकी जो गुफ्तगू होती थी, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती थी वो अपने नेबर्स जिनके हमसायों के साथ डिस्कस करते थे। द न्यूज़ ऑल अबाउट अगेंस्ट द कल्चर रिलीजियस एंड वैल्यूज़ ऑफ हिंदू कम्युनिटी विच ब्रिंग द चेंज इन एनवायरनमेंट। तो रेडियो के ऊपर जितनी भी न्यूज़ चलती थी वो सब हिंदू कम्युनिटी जो थी उनके रिलीजन, उनके कल्चर, उनकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट थी और इस तरह ये चीज़ उनके इन्वायरमेंट में एक नई चेंज लाई। द कन्फ्लिक्ट इंक्रीज्ड डे बाय डे एंड ऑल द नेबर्स स्टार्टेड टू लिव सेपरेटली। और ये कन्फ्लिक्ट जो थी डे बाय डे ज़्यादा होने लगी, फैलने लगी और वो नेबर्स जो थे, हमसाए जो थे, वो एक दूसरे से अलहदा रहने लगे। सम ऑफ देम स्टार्टेड ब्लेमिंग ऑन ईच अदर टू मेक देम रॉन्ग। और उनमें से कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे कि तुम गलत हो। ऑल्दो दे लिव टुगेदर इन सेम नेबर एंड डू नॉट हार्म ईच अदर। अगरचे वो सब एक साथ रहते थे
और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। बट दे स्टॉप्ड देयर मीटिंग्स ब्रदरहुड एंड अदर रिलेशनशिप्स अमंग देमसेल्व्स। लेकिन अब उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी जो मीटिंग होती थी, जो ब्रदरहुड था, जो उनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप थे, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। बिकॉज ऑफ रेडियो द वर्ड चेंज, और इस रेडियो की वजह से ये जो वर्ड है वो चेंज हो गई। और इसी वजह से इस शॉर्ट स्टोरी का जो टाइटल है उसका नेम रखा गया है द वर्ड चेंज्ड। रेडियो की वजह से वो जो वर्ड थी वो चेंज हो गई ओल्ड कराची की। द मीडिया डिवाइडेड पीपल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सच एज सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली एट्सेट्रा। ये जो मीडिया है इसने लोगों को डिवाइड कर गया डिफरेंट ग्रुप में, जैसा कि सोशल ग्रुप हो गया, पॉलिटिकल ग्रुप हो गया, रिलीजियस ग्रुप हो गया, और इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा थे। Munna, who is a little child who does not know about the discrimination and separation of his elders in the society. मुन्ना जो है एक छोटा बच्चा है और वो ये नहीं जानता कि सोसाइटी में उसके जो बड़े हैं, यानी कि उसके फैमिली मेम्बर्स जो उससे बड़े हैं, वो किस वजह से एक दूसरे से अलहदा हुए हैं, यानी कि अपने नेबर से, अपनी सोसाइटी से अलहदा हुए हैं, और क्या डिस्क्रिमिनेशन है। इन सारी चीज़ों से मुन्ना जो है वो बेखबर है। ही इज़ कन्फ्यूज टू डिफ्रेंटिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और मुन्ना जो है वो कन्फ्यूज है कि वो फ़र्क कर सके कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। चिल्ड्रन नॉट बोर्न विद स्पेशल क्वालिटीज़ टू होम दे शुड लव आर हैट। और लास्ट में वो इसकी जो राइटर हैं वो कहती हैं कि बच्चे जो होते हैं वो उन स्पेशल क्वालिटीज़ के साथ नहीं पैदा होते कि उनको किन के साथ मोहब्बत करनी चाहिए और किन के साथ नफ़रत करनी चाहिए, बल्कि ये इन्वायरमेंट होता है जो उनको चेंज कर देता है, जो उनको ऐसे बना देता है। सो हियर द स्टोरी एंड्स। So after this is the main themes of the short story. Main theme of the short story is the conflict between cultures and religions. तो अगर हम इस शॉर्ट स्टोरी के मेन थीम की बात करें तो इसका मेन थीम जो है वो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन कल्चर्स और कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन्स, जैसे कि ओल्ड कराची का सिटियों में दिखाया गया है। और ये टाइम पीरियड चल रहा है पार्टीशन से पहले का, यानी कि उस वक्त पार्टीशन नहीं हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया नहीं बने थे। तो इस टाइम पीरियड में रेडियो की वजह से वो लोग जो थे नेबरहुड में रहते थे, जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, इकट्ठे मीटिंग्स करते थे, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि उनके कल्चर डिफरेंट थे, उनके रिलीजन डिफरेंट थे, उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट थी। जैसा कि अगर हम बात करें तो कराची में इंडियंस भी रहते थे, इट मीन्स कराची में हिंदू भी रहते थे और मुस्लिम्स भी रहते थे। तो इस तरह उनके कल्चर डिफरेंट थे, उनके रिलीजन डिफरेंट थे और उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट थी, और इसी रेडियो की वजह से वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए और उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गई। और इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स की बेस के ऊपर ब्रिटिश इंडिया था, जो इंडिया था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तान बन गया, दूसरा इंडिया बन गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द शॉर्ट स्टोरी and the word changed by Muneeza Shamsie, and in our next class we will discuss another short story, Keeper of the Shrine by Amar Hussain. I hope you have understood it thoroughly. If you have any question related to this topic, you can ask in comment section and I will try to answer you. And don't forget to push the subscribe button and press the bell icon so that you can receive the notifications of our upcoming videos. And if it is helpful for you, then like it and share it to your class fellows and to your classmates so that they can also get to benefit from it. And like our video and put a beautiful comment in the comment section. Thanks for watching. Bye bye.